idea of the session is basically I will map 17 years of prelims questions and mains questions under 1 hour and give you a structure that you've never had before, and that can absolutely change the direction of your preparation. What I'm showing you here is basically the subjects. What you see, ये mains में polity के 106 questions हैं, prelims में 295, current affairs का count is 52, and there are 45 micro themes in polity. 45. So if you do 45 themes in polity, revise, give mocks, and prepare it really well, that is when you achieve an accuracy of 90%. Just look at this. See exactly where the marks are. This is an entire page of 17 years of PYQs mapped into themes, a complete system. Every UPSC question sorted and counted. सबसे ज्यादा अभी रिसेंट में अगर देखोगे तो 314 क्वेश्चंस आए एनवायरमेंट में. पहले एक आपको मैक्रो पता चल गया कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है. एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दिस इज योर लोकस. इससे यहाँ पे जब तक ये नहीं करोगे तब तक नीचे जाने की जरूरत नहीं है. Good evening, everyone. So welcome to the webinar today. As you already know, UPSC 2026 prelims is over, and everybody, if you're a beginner, if you're planning for 2027, I'm assuming like you're a complete beginner. You're starting with that assumption. So today we're going to introduce something really interesting. But before that, what the idea of the session is basically I will map 17 years of prelims questions and mains questions under 1 hour and give you a structure that you've never had before, and that can absolutely change the direction of your preparation. Because actually, if you say that the paper is unpredictable, then what happens that if you on a fault, right? Because after a point of time when you give the exam, you do not have a problem of knowledge, you have a problem of a direction. So when if you say that paper is completely unpredictable, you can just go ahead and say, okay, fine, it was not my fault. So it is also time to take some accountability, because today what we are going to do, uske baad you cannot say that, I did not have a direction. All right. So let's say if you're starting your preparation, so what you will do with the syllabus, right? So let's say you're starting with the syllabus, because you cannot go by just like, instinct. You have to have a proper logic and follow that logic, have a PYQ based system. So like basically, because syllabus is so abstract, so vague, it is like unpredictable in so many ways that you cannot really understand that even if you solve the PYQs, go through the PYQs, how do you actually concretize the themes? So what we've done, we have divided the entire syllabus, right? I mean, what is rivers of India? I mean, like, are the questions when you go through the PYQ, are the questions only from the rivers of India, where what is the name of the river? There are dimensions, there are themes under it, okay? So that is why you have to go that deep to ensure that, you actually have a 90% accuracy or even 70% chances of clearing the exam, right? So let's show that what it means. You need to have a very ruthless direction when it comes to having a structure and system. Basically, even if you're preparing, you have like knowledge and you're going in a direction. Hota kya hai ki aap sabse pehle you make two major mistakes. There are two fatal mistakes that you do, and those mistakes are basically you overlook the idea of themes, okay? Because you're studying from book to book and you're studying from syllabus to syllabus. The syllabus is so vast. I mean, let's say अगर polity है, polity से citizenship से एक question आया है, और fundamental rights से let's say more than 20 questions are there. So what do you prioritize? I mean, prioritize का मतलब ये कि how do you actually go into it? How do you define your direction कि मुझे इसमें इतनी depth चाहिए, इतना knowledge चाहिए, इतना content चाहिए. तो उसके लिए आपकी कोई micro themes की या themes की बहुत ही dense preparation नहीं होती, उसके लिए content नहीं होता, और आपकी कोई dimensions नहीं होती. So that becomes the problem, right? What I'm showing you here is basically the subjects. What you see, ये mains में polity के 106 questions हैं, prelims में 295, current affairs का count is 52, and there are 45 micro themes in polity. 45. So if you do 45 themes in polity, revise, give mocks, and prepare it really well, that is when you achieve an accuracy of 90%. But 45 themes के अलावा भी बहुत topics हैं जहाँ से ना questions आए हैं, ना कोई relevance है at this point of time, but you still keep on preparing those, and that is the fault. That is your fault. That is paper not being unpredictable. So keep that in mind, right? Syllabus will give you the ocean, but we are trying to give you where to actually go fishing, right? Micro theme is exactly that. So this is a macro view, and I will show you what the micro themes look like. So this is, let's say, polity, okay? So this is a micro theme for polity. So there, for example, polity, fundamental rights 7, judiciary 4, political theory this, non-constitutional, statutory body this is your complete micro theme system, okay? Now these micro themes also have like
lot of dimensions. Like, okay, so when you go through the micro themes, you will see like river system is a micro theme, right? But under that also you have particular dimensions, you have different dimensions to cover. Jahan se UPSC has been asking questions, what you have to do is that you have to prepare those dimensions as well, because the questions have become really complicated. There are external linkages in the questions, और अगर आप beginner हो तो आपको तो चीजें समझ में भी नहीं आएंगी. You will be on the surface level, same चीजें repeat करते रहोगे, and next year you'll be like paper was very random. Okay, so you don't have to do that. Missing the desired depth, and this is what I'm saying, like dimensions है, ज़्यादा deeper dimensions है, तो dimensions को समझना and creating your content around it. मतलब content इतना structure होना चाहिए उन dimensions को cover करने के लिए important micro themes में, कि चाहे कहीं भी हो जाए, even if you're little bit unfamiliar with the question, आप elimination technique का use करके उसको answer कर सकें, क्योंकि आपकी depth, understanding और interlinkages इतने strong हो चुके हैं. Okay? अब यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स की बात करेंगे सबसे पहले, देन वी आर गोना गो टू मेंस. बात ये है कि यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स का प्रॉब्लम ये है कि देयर इज सो मच फियर एंड साइकोसिस, पैरानोया, कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो एंड देयर इज नो डेप्थ, और आप एमसीक्यू मास्टर बन जाते हो. बिकॉज मतलब बट एग्जाम इज, यू नॉट गोना क्लियर द एग्जाम बाय जस्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज, राइट? यू नीड टू जस्ट क्लियर द प्रीलिम्स. एंड गेम बहुत लंबा है. So to clear the prelims, how many micro themes do you have to cover? How many topics do you have to cover? How do you interconnect? वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है. Otherwise, you're just gonna do the same thing. Now, I'm gonna show you something absolutely stunning that we are launching now. Just look at this. See exactly where the marks are. This is an entire page of 17 years of PYQs mapped into themes, a complete system. Every UPSC question sorted and counted. Tap any subject or topic to see the real questions that came. जो questions actually में आए हैं उसको देखने के लिए you just have to click. Okay, it is at your अपने फोन पे बैठ के आप पूरे टाइम्स को एनालाइज, जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप you just have to open that and reorient that. Imagine that. This is has never happened before. What is getting asked more lately? So I'm for example, I'm preparing fundamental rights and I've given the test and I'm not scoring well. What I would do is just open my phone, open this page and again go back. Or if I have to run for the test and I do not have much time, I will again have to revise the micro theme. I can just go back and to this page and I can just because you don't have that much time. Okay, बहुत जल्दी we'll just go and scroll through and check कि क्या आ रहा है, right? What is getting asked more lately? How to study it with normal books like NCERT and the newspapers, where people usually get stuck and the small things most people miss. Okay, ranker और एक normal aspirant जो बहुत preparation करने के बाद जिसके पास knowledge है but direction gap है, उसके difference यही होता है, because they have, this is the system. When we at Civils Daily, when we talk about system, this is what it is. So let's say I want to start with prelims. So this is prelims, and clearly see this is from 2008 to 2026. These are the questions. यहाँ पे what you're seeing is 314. So this is सबसे ज्यादा अभी recent में अगर देखोगे तो 314 questions आए environment में. पहले एक आपको macro पता चल गया कि कौन से कहाँ से मुझे start करना है. Environment, economics, science and technology, polity, geography, this is your locus. इससे यहाँ पे जब तक ये नहीं करोगे तब तक नीचे जाने की जरूरत नहीं है, because नीचे कोई relevance कम हो रहा है. Off topics जो हैं वो तो बात के लिए, जब तक आपका 90% accuracy इन subject में नहीं आ जाएगी, you're not going to move to different subject. This is a simple structure that a lot of people ignore. Right, now let's say I want to see questions that came in environment in the year 26. Okay, environment subject है, इसके अंदर ये है micro themes. This is what we call micro themes. अब micro themes भी देखो कैसे categorize हमने किए हैं. Pollution and sources, 35 questions from that source. So मतलब immediately you know कि pollution and sources जो micro theme है, I have to do that first. Again, pollution and acid rain. ठीक है, 3 questions आ चुके हैं, मे बी आए नहीं आए, go through the PYQs, पेरीफेरी को कंप्लीट करो एंड यूर डन. अब इसमें एक बहुत यूनिक चीज है. सो जैसे नेशनल पार्क 17 क्वेश्चंस, इंडियन एनवायरमेंट एक्ट 17 क्वेश्चंस, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, क्वेश्चन 17 आए हैं. उससे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? पोल्यूशन से आ रहे हैं. ठीक है, UNFCCC से 26, IPCC, रियो फैमिली से देयर आर 26 क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द पास्ट. सो व्हाट वुड यू स्टडी पहले, राइट? आप बायो फर्टिलाइजर फ्यूल्स पे ज्यादा टाइम दोगे कि आप पोल्यूशन एंड सोर्सेज पढ़ोगे?
So this is something that you have to understand, or understand kya, the system is there, you don't have to actually deduce anything on your own, you're saving a lot of time. Ab this is what is getting asked more lately. कहाँ से questions आ रहे हैं? तो इकोलॉजिकल थ्योरी के क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, नेशनल पार्क के कम हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कम हो रहे हैं, कुछ स्पाइक नहीं हो रहा है. व्हाट इट मींस इज दैट कि जहां से क्वेश्चंस आ रहे थे पहले से सेम चल रहा है, पर इससे यानी कि क्लाइमेट चेंज वाला जो है, बिकॉज दे ऑलरेडी आस्क्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस इन स्टैटिक, वो क्वेश्चंस अब कम हो चुके हैं. लेट्स सी. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे लेट्स सी माइक्रो थीम्स का पीडीएफ आपको अगर नहीं पता है, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट इट, आई एम अज्यूमिंग यू नो अबाउट इट, बट इफ यू डोंट नो अबाउट इट, माइक्रो थीम्स इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट वी प्रोवाइड. ठीक है, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन आस्क एंड यू विल गेट दैट फॉर फ्री. इट्स अवेलेबल फॉर फ्री एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट क्यूरेटेड फॉर द PYQs. अब अगर आपने माइक्रो थीम डाउनलोड कर ली है, आपके पास फ्लैश नोट्स हैं, आपके पास एक्स फैक्टर नोट्स हैं, व्हाट यू विल डू इज दैट कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है. मैंने पोल्यूशन पढ़ा है, PYQs कर लिए. अगर आपने नोट स्टार्टेड कर दिया तो ठीक है, लर्निंग पे हो, रिवाइज्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, किस लेवल पे हो, यू हैव टू, इट विल ट्रैक योर प्रोग्रेस. ये आपका ट्रैक करेगा. ओके अब अगर आपने पोल्यूशन एंड सोर्सेज पढ़ लिया है, तो लेट्स से मैंने इफ आई एम रीडिंग इट, तो मैं क्या कहूंगी, लर्निंग रिवाइज कर लिया एक बार, और अगर बहुत बार रिवाइज करके 80% 90% एक्यूरेसी आ गई है तो कॉन्फिडेंट. दिस विल रिफ्लेक्ट हियर. ये देखो, यहां से तुम्हें प्रोग्रेस पता चलेगी कि तुमने जो माइक्रो थीम्स है, आई एम अज्यूमिंग एक्स नंबर ऑफ माइक्रो थीम्स इन एनवायरमेंट, यहां से पता चलेगा. तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम हियर. दिस इज सो वेल क्यूरेटेड दैट यू नो, इसके अलावा जो भी आ रहा है वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है तो टॉपर को भी नहीं बनेगा. बट व्हाट यू कैन नॉट मिस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन द फैक्ट दैट कि इनको जो नहीं करके जा रहा है, और करके जाना नहीं, रिवाइज करके ही नहीं जा रहा है, कंटेंट नहीं है, मॉक्स में एक्यूरेसी नहीं आ रही है, देन यू आर एट फॉल्ट. सी दिस. So once you do that, if you're confident, it will reflect. It actually is very color coded and reflect for all the subjects, all the micro themes. अब अगर आपको माइक्रो थीम चाहिए, like you've downloaded this, if you have this app and you want to see the micro theme for this particular topic, just click here and you will actually get the micro theme. कि micro themes हैं क्या. If you want a flash notes, now you've seen the micro themes, what do you want? कि मुझे flash notes चाहिए, मुझे I want to revise it again, the entire pollution वाला topic, स्पीशीज वाला टॉपिक पढ़ना है, मुझे पोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ना है, या जो भी, जैसे दिस इज स्पीशीज राइट, मुझे ये पढ़ना है, फ्लैश नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो. सिमिलरली इफ यू वांट द मेन स्टडी एक्स फैक्टर नोट्स, यहां से डाउनलोड कर सकते हो. सोर्स कोड वुड बी सम स्टैंडर्ड बुक दैट यू कैन डाउनलोड, जो कि अपार्ट फ्रॉम फ्लैश नोट्स एंड एक्स फैक्टर नोट्स होंगी, दैट इज द स्टैंडर्ड सोर्सेज. आपको इसका वीडियो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू मेड अ वीडियो ऑन दिस एंड यू वांट टू वॉच अ वीडियो, यू कैन गो देयर. NCRTs यहाँ से अवेलेबल होंगी, दैट आर एनोटेटेड NCRTs दैट वी हैव क्यूरेटेड, हाईलाइटेड एंड टोल्ड यू कि क्या पढ़ना है, वो यहाँ से मिलेंगी. If you want to see a topper's copy, and I really believe this is so unique, because when you're doing answer writing, you really want a good reference of a topper to see कि exactly कैसे होता है. ठीक है. And burning issues is basically if there is something that major happened with respect to this, okay, वो वहाँ पे आ जाएगा. Add that to your notes is actually very helpful. That you know, if you just revising this or making notes, add a burning issue. आपके पास अगर already content है, and if नहीं है, तो then you make your content from X factor. X factors, flash notes and burning issues combine करके आप एक बार में ही उसको बना सकते हो. किस तरीके के questions, किस तरीके का curation है. So let's say I have chosen 2025, right? तो 2025 मैंने choose किया था, तो जो भी ये questions आ रहे हैं, यहाँ से देखो पूरी की पूरी questions है ये यहाँ पे. This is all environment, all the questions. Not only this, what we give you at the end is how to actually go about it. At the end of it, this is what you get. Small things that matter, okay? So, on some counts, सबसे ज़्यादा asked subject है, but सबसे ज़्यादा difficult है, सबसे ज़्यादा dynamic है. Hours कितने देने हैं, किस तरीके से करना है, क्या anchors हैं, कौन से 3 live trackers को आप use कर सकते. These are the tips. This is what you need to understand. Okay? So, I hope this is clear to you. Now, very, very quickly, I'll also show you
how to go. We'll actually see this again when we're going to do the mains micro theme. We'll go that. Let's go back to our session now. So this is geography. This is river system. These are the questions. This is the micro themes. Okay. After this, you don't have to go. This is the micro themes that are available to you. यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क किया है. एंड नाउ द डायमेंशन. व्हाट आर द डायमेंशंस? द डायमेंशंस आर रियली इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ हाउ डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि रिवर सिस्टम से क्या क्वेश्चन आ रहा है. बिकॉज रिवर सिस्टम से एक डायमेंशन नहीं पूछेंगे, बहुत सारे. सो लेट्स से ओरिजिन, लेक्स, नेचुरल ग्लेशियर्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स. ठीक है, ये क्या है? ये पहली डायमेंशन होगी एंड इट इज द फर्स्ट लेयर. फैक्चुअल लेयर है. क्वेश्चंस क्या है? Which one of the following rivers does not originate in India? Consider the following rivers. ये कौन सी राइज हो रही है ईस्टर्न घाट से? यहाँ से बराक, लोहित, सुबनसिरी, which is coming from Arunachal Pradesh, okay, pass through Himachal Pradesh. So you see a layer is created. पहली डायमेंशन हमने ये डिसाइड की. Okay, so this is the first dimension. जो डायमेंशन हमें बनानी होती है थीम्स के थ्रू, यहाँ पे this is what it means, how to create it. There is a complete micro loop that you cannot cross because micro loop क्या होता है? आपने माइक्रो थीम्स डाउनलोड कर लिए, राइट? यू डाउनलोडेड द माइक्रो थीम्स, बट दैट इज द 10% ऑफ द एफर्ट एंड 10% ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन. व्हाट यू रियली नीड टू डू आफ्टर दिस इज दैट you have to analyze the dimensions, you have to create the content, you have to revise, you have to do mocks, do the PYQs again. And अगर आप जब तक 90% या 80% accuracy PYQs में नहीं आ रही है आपकी, that means you cannot move on. Right? This is how you refine. And जब 90% accuracy आ जाएगी, this is how you close the micro loop. Okay? So this is the first part because आपको micro themes मिल गई हैं. अब आपका second क्या है? You have to create dimensions and understand dimensions. Okay? Dimensions बन गई. Second level पे super maps हैं, geographic phenomenons हैं. ठीक है? कहाँ पे क्या है? U-turn क्या है? So this is U-turn. Brahmaputra, Irrawaddy, Mekong originate in Tibet's narrow and parallel mountain ranges. तो इसमें U-turn form होता है. ठीक है? ये कौन से स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट हैं. तो यहाँ पे एक और डायमेंशन पूछी हुई है. ठीक है, रिफ्ट वैली को यहाँ पे पूछा हुआ है. सो व्हाट डायमेंशंस लाइक प्रोसेसेस और फिनोमेनन्स के बारे में पूछ रहे हैं. अब ये है लेवल 3. दिस लेवल 3 कम्स टू द ट्रिब्यूटरीज, लाइक ऑल्सो लाइक अ बिट ऑफ अ फैक्चुअल ट्रिविया. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ रहा है. तो दिस इज ट्रिब्यूटरीज. ओके, दिस इज अगेन ट्रिब्यूटरीज. दिस इज अ थर्ड डायमेंशन. सो रिवर सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू थर्ड डायमेंशन. ओके, ये रिवर सिस्टम्स के फ्लैश नोड्स हैं. अब क्या करा मैंने? डायमेंशंस अंडरस्टैंड कर ली. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ओपन द सुपर मैप्स. दिस इज अवेलेबल to you in the website. You can download it. This is a part of flash notes. Okay, this is what you do. तो यहाँ पे ही आ गया. अब now what you have to do, यहाँ पे बहुत clearly दिया हुआ. It's not just like कि rivers कहाँ पे, rivers, mountain, passes, नेशनल पार्क, सब कुछ इसी एक मैप में आपको मिल जाएगा. ठीक है, एवरीथिंग इज इन दिस वन पर्टिकुलर मैप. वी हैव क्रिएटेड दिस स्पेसिफिकली जिससे डिफरेंट मैप्स ना यूज करने पड़े. Okay, then you have analysis. This is flash notes. Okay, these are the flash notes. ये flash notes का part है and I will show you exactly कैसे दिखती है flash notes. ये flash notes हैं. These are curated for art and culture. This is how it looks like. Let's go back. तो ये flash notes हैं. यहाँ पे पूरा analysis है river system का. This is how you have to make notes. आप कौन से structure पे आ गए हैं? Flash notes के structure पे. यानी कि पढ़ लिया है, dimension बना ली, notes बनानी है. ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूरा. अब नेक्स्ट क्या आ सकता है? सो व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग डायमेंशंस, यू आल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि ओके ये डायमेंशंस तो क्लियर हो गई है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पॉलिटी. ठीक है, अब पॉलिटी पे आते हैं. हमने वो ज्योग्राफी का एक माइक्रो थीम देखा, उसका डायमेंशंस देखा. दिस इज पॉलिटी. ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द माइक्रो थीम. अब माइक्रो थीम के बाद हम देखते हैं तो हम इसमें पॉलिटी में FR एंड FD एक माइक्रो थीम हो गई. उसकी 3 मेजर डायमेंशंस हैं. ठीक है, अब वो 3 मेजर डायमेंशंस क्या है मैं आपको बताती हूँ. तो पहले क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट कि सिर्फ आर्टिकल्स, उनकी लोकेशंस वो किसके अंदर है ये पूछ रहा है. बहुत फैक्चुअल है, सिंपल रिकॉल है. फॉर एग्जाम्पल, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी. एक्चुअली राइट टू प्राइवेसी तो उन्होंने 2 बार पूछा. इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन. दैट्स व्हाई आल्सो यू हैव टू गो थ्रू PYQs वेरी वेरी रिगुलरली बिकॉज बहुत बार डिफरेंट लैंग्वेज करके और वो पूछते हैं. ठीक है, दिस इज फंडामेंटल राइट्स, अनटचेबिलिटी कहाँ पे लोकेटेड है. दिस इज ऑल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पहला डायमेंशन. सेकंड डायमेंशन, ठीक है, क्लासिफाई करो. लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किस तरीके का क्या उसका नेचर है, क्या कर सकते हो, किसको अवेलेबल है, उस टाइप के क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज व्हाट. ठीक है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेट्स से. ठीक है, वो यहाँ पे अनटचेबिलिटी क्या है वो कहाँ पे आ रही है. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया. सो दीज आर द काइंड ऑफ जहाँ पे नेचर पूछा जा रहा है.
थर्ड लेवल इज बेसिकली जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से आप बियॉन्ड जा रहे हो, यू ट्राइंग टू कनेक्ट इट थ्रू द पेरिफेरी ऑफ लेट्स से डीपीएसपी, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, तो आपका लेयर्ड हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आगे भी पूछ रहा है, प्रियम्बल से कनेक्ट कर रहा है, ये वो वाली लेयर्स है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, तो मेजर कितनी डायमेंशन बनाई हमने, एक तो फैक्चुअल, सेकंड हमने उसका नेचर अंडरस्टैंडिंग, देन थर्ड इज लाइक दैट गोज बियॉन्ड, देयर इंटरलिंकेजेस इन द कॉन्सेप्ट, इन द टॉपिक, राइट। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the कहाँ पे, this is right। अब ये भी फ्लैश नोट्स का पार्ट है, यहाँ पे देखो ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। सो दिस इज द आर्टिकल एज यू सी, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, क्या नेचर है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या कनेक्शंस हैं, इस तरीके से आपको फ्लैश नोट्स के अंदर पूरा मिल जाएगा। एंड प्रीलिम्स में ऑब्वियसली अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, देयर आर लाइक डायरेक्ट हिट्स, ओके। कौन सी इनिशियल पोजीशन थी, ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज का नेचर क्या है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द फ्लैश नोट्स। अब सेकेंड थीम की बात करते हैं, एक और पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज्यादा लैंग्वेज में ऑप्शंस में गेम करते हैं। वो जब आता है आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पॉइंट या ये डेफिनेशन या प्रोसेस या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इंटरलिंक्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल थीम ऑफ थिंग्स, ओके। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेन एक पहला डायमेंशन क्या होगा अगर पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना। सो दे वाज लाइक व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, स्टेट की मीनिंग क्या है, ओके, आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। सो दीज आर द डेफिनेशन बेस्ड कि आपसे एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट और क्लोज लिंक्ड ऑप्शंस पूछे जाएंगे और वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या चीज पूछ रहे हैं। दिस इज लाइक लेवल 2 जहां पे आपसे पर्पस, एडवांटेजेस और फीचर्स पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक यू नो द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट व्हाट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ से और मतलब व्हाट इज द मेन फीचर्स, तो और आगे बढ़ के कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन से आगे बढ़ के फीचर्स, एडवांटेजेस, ये सारे पूछेंगे। अब कोरिलेशन, तो जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस और लिबर्टी के बीच में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर लिमिटेड गवर्नमेंट है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, एंड देन लिंक इट टू डिफरेंट थिंग। तो दीज आर द क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दिस इज द लेवल 3 एंड द कॉम्प्लिकेटेड लेवल। अब आपको पढ़ना है ये, अगेन फ्लैश नोट्स है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मैंने अभी पीछे आपको एक क्वेश्चन दिखाया था कि स्टेट पे क्वेश्चन आया। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, ऑलराइट। So once you've done your standard sources, you need to have a very compact notes, and this is why you need to have something like this, okay। Republicanism क्या है, ये ड्यू प्रोसेस लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, ओके। अब ये माइक्रो थीम है जुडिशरी की, माइक्रो थीम है थर्ड ऑफ, अभी हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, दिस इज अ जुडिशरी माइक्रो थीम। जुडिशरी के अंदर यू हैव दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द माइक्रो थीम। और डायमेंशन पहली बात करते हैं। सो द फर्स्ट डायमेंशन इज कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूछना, बहुत फैक्चुअल, बिल्कुल उसमें कुछ खास अंडरस्टैंडिंग वाली चीज नहीं होती है, मगअप वाली चीजें होती है। जुरिस्डिक्शन क्या है, क्या कर सकते हैं, कहाँ पे कितना पावर है, दैट ऑल इज गिवन बेसिकली इन द स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। आप एक्स फैक्टर नोट्स में वो पूरी सारी चीजें नहीं है, दिस इज ऑल ऑफ मगअप चीजें, और आपको कितना रिवाइज करना है, आपको यहाँ पे क्लैरिटी है कि ये डायमेंशन बहुत मगअप करने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद यू हैव लीगल मशीनरी। तो रिसेंटली क्या है, पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल कस्टडी, प्रिजनर राइट्स क्या है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से क्वेश्चन आया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि दिस हैज रीच्ड अ बियॉन्ड लेवल, दिस इज हाउ यू डिफाइन द डायमेंशन, राइट। नाउ अगेन व्हाट हैपेंस इज दैट, नाउ अगेन व्हाट रियली हैपेंस, जैसे ये चीजें तो बहुत क्लियर है, अब ये रटने वाली है तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन डालने की आपको जरूरत नहीं होती है। ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू दिस। Legal Services Authority. So Legal Services Authority is like a periphery concept. It's a legal concept that goes beyond the judiciary. It's a part where Supreme Court is involved, but it goes beyond that. ठीक है। अब आते हैं थर्ड एंड रियली इंपॉर्टेंट, बहुत डायनामिक होता है ये सब्जेक्ट इकोनॉमी, और इकोनॉमी में डायमेंशंस क्रिएट करना और एनवायरमेंट में डायमेंशंस क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, फैक्ट, हर चीज का मिक्सचर होता है। सो लेट्स से अगर हमें डिवाइड करना है डायमेंशंस में, तो भी हम इसे बहुत सिंपली कर सकते हैं। हाउ? अब ये माइक्रो थीम है बजट और फिस्कल पॉलिसी। व्हाई आई एम सेइंग बजट, अब आई हैव चोजन बजट एंड फिस्कल पॉलिसी इज आल्सो आई शो यू, क्योंकि बजट एंड फिस्कल पॉलिसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा वो मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ, यू विल सी। तो ये पास्ट ईयर पेपर्स है, प्रीलिम्स है। अगेन ये हीट मैप पे चलते हैं हम, ये इकोनॉमिक्स है। लेट्स क्लिक एट 2026, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्स्ट। कैन यू सी बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, 33 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, 33, and it is increasing only. It is increasing only because न्यूज में इतना है, करंट अफेयर्स में इतना है। इफ यूर अ बिगिनर ऑब्वियसली यू वुड नॉट नो दैट कि इतना ज्यादा करंट अफेयर्स में है, बट somebody who's been preparing would know that and will they prepare accordingly, ठीक है। सो आप
वेटरन से अगर कॉम्पीट कर रहे हो तो अगर आपको इस तरीके की चीज नहीं मिलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, आप पढ़ते रहोगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स या शायद इकोनॉमिक प्लान फॉर मंथ्स टू कम और उससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते. सो या हियर ऑल्सो जैसे अब यहाँ पे बता रही हो ना, मैं कह रही हूँ नहीं आ रहे हैं किससे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ 5-year प्लान से क्वेश्चन आई नहीं, हैज गॉन क्वाइट, लास्ट केम अप इन 2019. आर यू गोइंग टू स्पेंड हाउ मच टाइम यू गोइंग टू स्पेंड टू स्टडी दिस? थिंक अबाउट इट, लाइक स्ट्रक्चर, यू नीड दैट. ओके, अब बजट एंड फिस्कल पॉलिसी से अगेन ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. 2025 में देखो जो क्वेश्चंस आए होंगे ना, इस तरीके से दिखेंगे तुम्हें. So let's go back. I wanted to show this to you so that you understand that ki why I know that ki itne questions आए, because that heat map, my entire system is telling me कि कहाँ से questions आ रहे हैं. Okay? अब dimension 1 तो बहुत static और factual है. Why? बेसिकली रिकॉल फैक्ट करना है, डेफिनेशंस, कंपोनेंट्स क्या है बजट एंड फिजिकल पॉलिसी के. अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या है, एफआरबीएम से रिलेटेड फैक्ट्स पूछे हुए हैं यहाँ पे. दिस इज कैपिटल रिसीट्स, दिस इज कंप्लीटली फैक्चुअल. यहाँ पे कोई भी ऐसी डायमेंशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बट देन अगेन द नेक्स्ट लेयर इज अप्लाइड, दिस इज अ डायमेंशन 2. अब यहाँ पे ये 2025 का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 crores, रेवेन्यू रिसीट्स तो 60,000. अगर आपको कॉन्सेप्ट पुराना नहीं पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता ही नहीं, आपको रेवेन्यू रिसीट पता नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, बिकॉज ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये थीम बहुत टाइम से, एप्लीकेशन बेस्ड वाली चीज बहुत टाइम से बन रही है. इसलिए बिल्डिंग दैट अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी शुरुआत से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको नहीं पता है कि मुझे वो जो कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी पूछ रहा है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस. ठीक है. अ कंट्रीज फिस्कल, अगेन द सेम क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो हाउ डू यू रीड इट? फ्लैश नोट्स में काफी अच्छे से दिया हुआ है कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट क्या होता है इन टेबल फॉर्मेट, एंड दिस इज लाइक अ डायरेक्ट हिट्स फ्रॉम द प्रीलिम्स ओनली. अब हमारी नेक्स्ट माइक्रो थीम है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी. अगेन व्हाई आई हैव चोजन दिस इज बिकॉज इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक. It's been repeating itself in the examination again and again. ठीक है. अब डायमेंशन क्या है इसकी? डायमेंशंस आगे चलते देखते. इसको मैंने 3 डायमेंशंस में डिवाइड किया है बिकॉज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है ना, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस और पेरीफेरी भी आती है. बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है और आरबीआई की जो फंक्शंस हैं, दे हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन एज टू व्हाट हैपेंस इंटरनेशनली एज वेल. इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू इंडिया. So that's why there are third dimension as well. अब instruments क्या हैं? For example, RBI uses a lot of instruments to control the money supply, okay, to maintain the liquidity in the country. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टर्म्स और आप न्यूज में पढ़ते रहोगे या आप जब फ्लैश नोट्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, एंड दे हैव डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि डिटेल में भी पूछ सकता है उसके फैक्चुअल, बट जनरली फैक्चुअल होगा. यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत न्यूज में था बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है, बहुत ज्यादा बैंक्स इससे सफर कर रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा है. देन यू हैव लाइक फॉर एग्जांपल सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द आरबीआई, वेरी फर्स्ट लेवल फैक्चुअल. जैसे ही पढ़ोगे ये सारी चीजें आपको बन जाएंगी. एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में थी और नोट्स में भी कवर की है बिकॉज ऑब्वियसली बर्निंग इश्यूज में ये सारी चीजें हम लोग कवर करते ही रहते हैं. अब कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मूविंग, जो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया है तो इम्पैक्ट क्या होगा, उसके लिए कैश रिजर्व रेशियो पता होना चाहिए. अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, अगर आरबीआई कर रहा है तो क्या होगा उससे. सो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, अगर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो गया है तो व्हाट विल हैपन. तो दिस इज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहां पे एप्लीकेशन, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन बेस्ड इकोनॉमी में आती है. पिछले में भी हमने देखा था देयर वर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें भी हैं. बजट फिस्कल पॉलिसी में भी था, इसमें भी था. जहां पे पॉलिसी और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे. ओके, सो दिस इज द थर्ड लेयर. और लास्ट में देयर इज मल्टी स्टेप रीजनिंग. जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल बैंक में क्या हो रहा है तो उसके कारण आरबीआई फिर क्या स्टेप लेगा टू इंश्योर दैट कि रुपी फॉल ना हो और ये सारी चीजें ना हो. दीज आर द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. ये फ्लैश नोट से निकाले हुए. आरबीआई की इनकम एक्सपेंडिचर और लिमिटेशंस ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. ठीक है. देन अगेन फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट्स. फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट्स इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थीम. इसके सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट्स एंड रेगुलेटर्स. तो कैपिटल मार्केट और फाइनेंस को मतलब कौन रेगुलेट करता है, उसमें रिजर्व बैंक का क्या रोल है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, टर्म्स एंड फैक्चुअल डिटेल्स एजेंसीज.
सेकंड डिमेंशन इज इंस्ट्रूमेंट्स. तो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है. इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा है, कॉल मनी, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स. एंड पहले क्या था, एजेंसीज. ठीक है, तो दिस इज एक्स फैक्टर. यू कैन सी दैट कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. पर यहाँ पे ये है कि आपको ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. ये आप जब मॉक्स दोगे विल रियलाइज कि काफी बार गलत हो रहा है. और इसकी स्पेशली पर्टिकुलरली नोट्स ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्स फैक्टर्स में ऑलरेडी अवेलेबल काफी इसी फॉर्मेट में है. इफ यू वांट टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन व्हेन यू रीड बर्निंग इश्यूज और करंट अफेयर्स, यू कैन ऐड इन द सेम डॉक्यूमेंट. ओके, दिस इज ऑल्सो अदर की कॉन्सेप्ट्स. अब एनवायरमेंट है. ठीक है, अब एनवायरमेंट में देखो माइक्रो थीम पोल्यूशन है, सोर्सेज है. दिस इज ऑल्सो आई हैव शोन यू इससे पहले भी हीट मैप पे कि पोल्यूशन और सोर्सेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, राइट. अब इसमें क्या है, सोर्स कॉज एंड इंडस्ट्री. सोर्स कॉज एंड इंडस्ट्री क्या है कि कहाँ से हो रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना हो रहा है. इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्ट लार्जेस्ट सोर्सेज. तो मैंने क्या कहा, लार्जेस्ट सोर्स है. अब ये है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन आपको क्या बताना है कि स्टील इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे सोर्सेज और इंडस्ट्री से पूछा जा रहा है, वो आपकी फर्स्ट डायमेंशन है. ठीक है, सोर्स, इंडस्ट्री. अब प्रोसेस, या फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग डीपर इन द प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री. तो सीमेंट इंडस्ट्री के प्रोसेस पे और डेप्थ में चले गए हैं और इन्होंने इंटरनेट किया है. वहां पे क्या था कि ये प्रोड्यूस होता है, ये वाले पॉल्यूटेंट्स. यहाँ पे क्या, कौन सी प्रोसेस लग रही है इसमें. ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या क्या ऐसे बन के प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वोल्केनिक इरप्शन की प्रोसेस से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या आ रहा है. ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग नाउ. एंड मैंने कहा था कि इन्वायरमेंट इसमें डायमेंशंस डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारा, बहुत ही वैरीड, बहुत करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस अब आने लगे हैं. बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अब यू वोंट बिलीव कि सिंगल पोल्यूटेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आप बिगनर हो, यू विल बी लाइक हाउ एम आई गोइंग टू रिमेंबर सो मच. बट ये चीजें क्यूरेट होती हैं बिकॉज वो न्यूज में आती रहती हैं. सो यू नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वो एक्स फैक्टर नोट्स में आपको और हमारे डोमिनेट प्रीलिम्स में यू विल गेट इट. और अदरवाइज लाइक जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो तो यू हैव दीज structured in small tables and you have to make sure. अब जैसे dimension अगर आपको पता चल गई है that if you've done this dimension thing on your own, अपने से जब आप ये कर लोगे थ्रू माइक्रो थीम्स, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि न्यूज में आज मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है. ये पर लाइक अगर आपको नहीं मालूम है कि नहीं इस तरीके से आ रहा है प्रोसेस, जो सीमेंट इंडस्ट्री की प्रोसेस से इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, सो इवन इफ यू सी अ फैक्ट यू विल इग्नोर इट. प्रोबेबली दैट is a one on off question, but if you want to be 100% sure, because अगर आप 100% certainty से कोई आपको गारंटी तो दे नहीं सकता कि आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा. But what we can say that yes, we can give you the guarantee, that we give you the confidence that you would go to the exam and not feel underconfident. All right, you would know that yes, I've done this entire journey in a prepared and phased manner in what was needed. Single pollutant profile, बिस्फिनॉल पूछा है, ट्राइक्लोसान, दीज ऑल बीन न्यूज, माइक्रोबीड्स. ठीक है, तो इस टाइप ये थर्ड डायमेंशन हो गया आपका. अब एक्स फैक्टर नोट्स का ये है कि यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस इज गिवन इन अ टेबल फॉर्मेट. सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक यस, जैसे मर्करी पोल्यूशन पे क्वेश्चन आया है पीछे. ठीक है, आई हैव शेयर्ड दैट इन द फर्स्ट. तो मर्करी पे क्वेश्चन आया है, CO2 पे क्वेश्चन आ रहा है, तो यू कैन नॉट like keep on reading long tests. You don't have that time, you don't need to, you don't have to, because elimination भी होता है. So all you need to know that इतनी information आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन की कि हाँ elimination भी मैं कर सकूं और direct hit मेरे हो जाए, that you're probably at least 70% certain that if I mark this, I have this knowledge, ये हो जाएगा. ठीक है, these are again that flash notes. अभी माइक्रो थीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज और एनवायरमेंट की है. Parent body, agency, what is it, what it does, functions, legal, membership, character. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, और पहले क्या था कि वो थोड़े प्रेडिक्टेबल भी पूछते थे. नाउ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दैट बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस भी आए हैं. बट होता क्या है कि व्हेन यू सी दीज रैंडम क्वेश्चंस इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू थिंक दैट कि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं आए. नहीं, अगर काफी अगर इंपॉर्टेंट थीम है तो हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल वो पूछे फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसके बारे में आपने ना सुना हो. अगर आपने नहीं सुना, इफ यू वेल प्रिपेयर्ड थ्रू माइक्रो थीम प्रिपरेशन, देन फिर किसी ने भी नहीं सुना होगा, देन टॉपर विल आल्सो नॉट मार्क इट. सो यू आर ऑन अ सेम लेवल. पेपर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी होने का फायदा यही है कि आप बहुत ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो जहां पे पीपल विल नॉट बी इन
where everybody has become on a level playing field. ये level playing field है. So unpredictability सभी के लिए है. So stop. You don't even give yourself the excuse that you know what, somebody is preparing for that long time. And especially if you do some like you know a thematic preparation जहाँ पे आप themes को prioritize करके proper notes बना के, if you're closing those loops, then तो आपके लिए in fact even if you're a beginner, after a year आप ज़्यादा certain रहोगे than actually somebody who's been preparing for some time, because their system, they're not clearing the exam. That means that they've not rectified that mistake of you know removing that problem. So let's say this is a parent body agency. हम international organization के बारे में बात कर रहे हैं. IUCN, UNEP, UNFCCC, EU, ठीक है, FAO, लेवल 1 स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं. ट्रैफिक क्या है, कहाँ से है, कौन सी लाइक यू नो किससे रिलेटेड है. मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल किसका इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया है. अर्थ आवर क्या होता है, ग्रीन क्लाइमेट फ्रंट से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन किसने बनाई. इट इज फाउंडेड अंडर द एजीज ऑफ यूनेप, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक. ये क्वेश्चन है, राइट. अब सेकेंड थीम क्या है, सेकेंड थीम की डायमेंशन क्या है, दैट व्हाट इट इज, व्हाट इट डज. दिस इज अ डीपर लेयर. पहले तो किसने बनाया, क्या था, क्या मतलब है, जस्ट वेरी सुपरफिशियल लेवल पे पूछ लिया. यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि व्हाट दे डन इज लाइक पर्पस भी बताओ. ऑलराइट, कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूनेप हैज बीन डेवलप्ड फॉर व्हाट, assessing the carbon footprint of building operations around the world. अब इसका आंसर ए ही है, ठीक है. ग्रीन वॉशिंग क्या है, टर्म, कॉन्सेप्ट, समथिंग दैट इज बीन गोइंग ऑन, वो पूछा है उन्होंने, ठीक है. दे आर नॉट आस्किंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसने डेवलप किया, क्या किया. नाउ दे हैव गॉन की जो कि ऐसी वो टर्म्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट, उसके बारे में भी पूछ रहे हैं. This question, can you see Greenhouse Protocol? It is an international accounting tool for government. It is an initiative. Now they are asking about the tools. तो पहले organization या bigger initiatives के बारे में पूछ रहे थे. Now they've come to more smaller initiatives, also descriptive, और आपको बहुत डेप्थ में पता होना चाहिए अबाउट दोस. तो फॉर एग्जाम्पल अब IUCN है, मुझे पता है कि IUCN से इतने क्वेश्चंस आए हैं इन द पास्ट जो कि पहले आपकी डायमेंशन से क्लियर हो जाएगा. तो अब IUCN की डीपर लेवल पे, डीपर इनिशिएटिव्स पे आप जाओगे. यूनेप के डीपर इनिशिएटिव्स को आप कोशिश करोगे पढ़ने का इफ यू हैव अंडरस्टूड द डायमेंशंस थ्रू माइक्रो थीम्स. नाउ लेट्स से डायमेंशन 3, फंक्शंस के बारे में बात करना. मेंबरशिप का कैरेक्टर क्या है, बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है, ये ट्रीटी है, ये बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है. अगेन ये डिफरेंट लेवल है, बिकॉज फैक्चुअल भी है बट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट इन द सेंस बिकॉज इसमें कंट्रीज का भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल XYZ कंट्री है, ठीक है, वेदर इंडिया इज सिग्नेटरी और नॉट, विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. It was endorsed in United Nations Climate Summit. It is endorsed by governments, company. Was India the signatory? ये अब क्या कंट्री से रिलेटेड या कितने सिग्नेटरीज हैं वहां पे भी आ गया. तो ये अलग और डायमेंशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है अगर आप इसको देखते हो, ठीक है. व्हाट इज गाक्सा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल, इसमें स्टेटमेंट कितने उसके स्टेटमेंट करो. अब दिस इज लाइक एन इनिशिएटिव, राइट. इट्स नॉट लाइक अ बहुत बड़ा नहीं, इट्स नॉट लाइक UNFCCC जितना बड़ा, या फिर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट चेंज है कि उसमें डेप्थ में पूछे. दिस इज आल्सो लाइक एन इनिशिएटिव बट स्टिल इसमें काफी डेप्थ में उन्होंने पूछा है. प्रोबेबली बिकॉज इंडिया इज लाइक एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री एंड इट मैटर्स कि इनिशिएटिव्स इंडिया के लिए काफी मैटर करते हैं. सो आई थिंक इट मेक सेंस दैट यू नो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इफ आई हैड टू रैशनलाइज इट. बट अगेन GACSA is an outcome of the climate summit. Member of GACSA does not create. तो इसका आंसर C है. This is like select the correct code. India was instrumental. Do you see India? So वहाँ पे पहले इंडिया का ऐसा नहीं पूछ रहे कि इंडिया है इंस्ट्रूमेंटल की नहीं. थर्ड लेयर में क्या है, इंडिया से कनेक्शन या डिफरेंट कंट्री से कनेक्शन या बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. अब जैसे ये फ्लैश नोट्स है तो यूनेप है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. अब यहाँ पे ये फंड्स पे क्वेश्चन आया है, तो ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, ठीक है, क्या किस टाइप के फंड्स इसमें बने हुए हैं, व्हाट इज द स्मॉल ग्रांट्स. अगेन यू विल गो और इसकी जब नीचे जाओगे तो उसमें और डीपर स्मॉलर जो इनिशिएटिव्स हैं उनका भी मेंशन है. अब जैसे ग्लोबल अलायंस ही पीछे क्वेश्चन आया है, दिस इज मेंशन्ड हियर, प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है ये, लेड बाय FAO, एम, ऑब्जेक्टिव. सो क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको इतना ही इंपॉर्टेंट होता है टू एक्चुअली क्रिएट सम सेंस कि हाँ आई कैन एलिमिनेट और प्रोबेबली हैव अंडरस्टैंडिंग. ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए वहां पे जाके कि आपको समझ में नहीं आ रहा. चलो ये तो थीम्स हो गई. नाउ व्हाट डू वी हैव, कि अब मैंने थीम्स पढ़ लिए है ना. दीज आर द 1 पेजर नोट्स ऑफ द टॉपर्स. ये देखो ज्योग्राफी की हमारे टॉपर्स हैं, उनकी खुद की बनाई हुई ये नोट्स हैं. ओके, तो 1 पेजर नोट्स किस टाइप की दिखती है, दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज हाउ योर नोट्स, दिस इज योर एम, ठीक है. कलर कोडेड पे जाना नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है. बट दिस इज हाउ ब्यूटिफुली somebody who's doing a structural preparation
does it. If you want to take a screenshot, just take a quick screenshot to have an understanding ki, you know, how this should look, because after that probably like you can, if you want this, you can reach out to us. तो ये देखो, this is how by probably आपके पास जब आप प्रीलिम्स देने जाने वाले हो, और जब आपकी एक्चुअली जब आपकी माइक्रो थीम्स कंप्लीट हो गई हैं, डायमेंशंस कर ली हैं, नोट्स बनाओगे, आप पढ़ लिया है आपने, उसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन करोगे ना अपना, तो ये होना चाहिए आपके पास. ये 1 पेज नोट्स के बिना अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप ये समझ लो कि लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग. टॉपर्स इस तरीके से पढ़ रहे हैं. सो थिंक अबाउट, बट ऐसा नहीं है ना कि हर चीज की नोट्स हैं. दीज आर लाइक रिवर्स हैं, ठीक है, दीज आर द रिवर्स. थीम पढ़ी है, समझा है उसको कि हाँ वहां से इस टाइप की क्वेश्चन है, तो डायमेंशन बनाया है, ठीक है. स्टेट पासिंग थ्रू, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड द डायमेंशन. ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है, यू अंडरस्टैंड द डायमेंशन. ओरिजिन एक डायमेंशन था. सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेल स्ट्रक्चर्ड 1 पेजर नोट. ओके, अब यूपीएससी सीएससी मेंस की बात करते हैं, एंड लेट्स जस्ट गो बैक फॉर अ सेकंड टू दिस. ओके, तो अभी तक हमने इस हीट मैप को देखा, और यहाँ पे यू अंडरस्टूड, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस. ओके, अब यहाँ पे प्रीलिम्स का तो हमने देख लिया कि हीट मैप कैसे काम करता है. नाउ दिस ब्यूटिफुल पेज इज गोइंग टू शो अस हाउ इट वर्क्स व्हेन इट कम्स टू GS1. कोई भी टॉपिक टैप करते हैं, 13 इयर्स के पेपर्स मैप्ड हैं, 275 क्वेश्चंस पूरे के पूरे मैप्ड हैं, ठीक है. हमारे लिए माइक्रो थीम कैसे बनती है, आई हैव टू पॉइंट दैट आउट. कि माइक्रो थीम तब बनती है जब आपने एक्चुअली स्ट्रक्चरली इस लेवल पे आप चले गए हो कि 2 से 3 बार वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. अगर 2 से 3 बार 5 साल में वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, दैट बिकम्स अ हॉट टॉपिक, एंड दैट इज लाइक डेफिनेटली अ माइक्रो थीम. अब यहाँ पे अगर मैं आर्ट एंड कल्चर, आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर को क्लिक करूँ, दिस इज अ वेरी बिग, कैन यू सी दैट 33, 20, दिस इज बिग. This year also, women, population and poverty, this is quite big. Here. 25, world geography, physical geography. Location of industry, big. Okay. So I am going, let's say I will pick up this. 3 questions आए हैं, ठीक है. 2025 का लेटेस्ट हमारा मेंस था, 3 क्वेश्चन आए. This is what UPSC is asking about. Kingdoms and Chola. मतलब किंगडम्स एंड चोला से मिला के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आए. जो तुम देखोगे तो ठीक है, अगर तुम्हें थीम में क्या दिया हुआ है, किंगडम्स एंड यू नो अदर इनसाइट्स अबाउट इट, राइट. यहाँ पे व्हेन यू से इट यू कैन गेट इट कि किंगडम्स एंड चोला इज दिस, किंगडम्स एंड किंग्स 2, स्कल्पचर्स, वैदिक कल्चर से 2 क्वेश्चन आए हैं. ओके, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज 3. ओके, सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से 3 क्वेश्चन आए हैं, बट व्हेन यू सी हियर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से 2019 के बाद क्वेश्चंस नहीं आएंगे. What does it, how much time will you take to understand Buddhism, Jainism has fallen down through the ladder when it comes to the importance and relevance when it comes to the mains examination current now? Days, you will take days to understand that. And here, when you see this, within minutes and seconds, your mind will start working. Okay, my next understanding, what I have to read is this. Okay, kingdoms के questions बढ़े हैं. Why? Because they've already asked a lot of basic questions. It's important that you go back to the questions that matter. Kingdoms, Vedic culture, kingdoms and kings, Chola, पल्लवा से question पूछा था for example. तो यहाँ पे देखते हैं क्योंकि kingdom से सबसे ज्यादा question आए. अब एवरीथिंग इज सेम हियर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइक्रो थीम की प्रोसेस, तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारा टॉपिक की कितना वेल प्रिपेयर्ड है, तुम यहाँ पे गेज कर सकते हो, ठीक है. तुमने कितने तुम स्टार्ट करा है, तुमने लर्न कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो इस थीम के लिए, ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट के लिए हो गया. दिस इज योर माइक्रो थीम कि भाई किंगडम मैंने स्टार्ट कर दिया, लर्न कर रहा हूँ, रिवाइज, कॉन्फिडेंट, यू कैन कीप ऑन चेंजिंग, इट विल कीप ऑन शोइंग. इट्स अ पर्सनल ट्रैकर, इट्स अ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर ऑल्सो. यहाँ पे यू विल सी हॉट, इट्स अ हॉट टॉपिक. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट एन आंसर एंड देन यू कैन सबमिट टू स्मैश मेंस. यहीं से अपना आंसर सबमिट कर सकते हो. तो थीम्स यहाँ पे देख सकते हो. नाउ लेट्स से आई वांट टू ओपन द पेपर, PYQs मुझे देखने हैं, मुझे अभी ही ये चारों क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट प्रिपेयर करना है. अगेन गो टू द आइदर लाइक आप एक्स फैक्टर नोट पे क्लिक करोगे, गो टू द एक्स फैक्टर नोट ऑफ दिस टॉपिक, आपको ये वहां पे लेके जाएगा एंड रीड दैट directly. You don't have to like again scour through the different notes. So this is a good structure created here to give you an understanding. So this was it. And this is not only for this. So this is for GS1. All right. Similarly, we have for GS2 also. Yes, you see
what is the what is like a really hot topic? Constitutional and statutory bodies. Okay, development process, NGOs, SHGs, big. Okay, अब let's say I will just click one. 18th मैंने क्लिक किया यहाँ पे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के क्वेश्चंस ऊपर बढ़ गए हैं. ठीक है, लास्ट 5 years में 2025 में पूछा, केस लॉ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. दिस इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. यहाँ पे ये इस तरीके से अमेंडमेंट, ये पूरे क्वेश्चंस यू विल गेट हियर. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज GS4. अगेन सबसे ज्यादा क्वेश्चन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से आए हैं. यहाँ पे हमें ये थीम्स मिल रही हैं. यू गेट द थीम्स and then you get the applied ethics X. ये पूरा आपका ethics in private and public space. You start to get to hear that. और ये आपको यहाँ पे मिल रहा है. Okay. Let's come back to the themes. Now I've shown you the heat map. We are going to quickly go through the UPSC CSE mains. UPSC CSE mains में भी problem क्या है? Like understand कि वही micro loop. अब mains की themes भी समझ लिया. Again creating that structure कि आप at least 6 मार्कर के लिए आप कितने पॉइंट्स लिखोगे, 15 मार्कर के लिए, 10 मार्कर के लिए, जितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग हो चुकी है और आपको डिमांड समझ में आनी चाहिए. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड, यू डू नॉट गेट द डायमेंशंस राइट, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट्स बिकॉज दिस इज जस्ट गोना पाइल इन अ पर्सनल लाइब्रेरी इन योर रूम. यू कैन नॉट डू दैट. ऑलराइट, अब सारे माइक्रो थीम्स हैं. लेट्स जस्ट टेक वेरी क्विकली दिस इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम हियर. ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की माइक्रो थीम है. ये क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ. ठीक है, लोकल क्या है, ठीक है, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट और उसका कनेक्शन क्या पूछा है, लोकल बॉडीज, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम, और इससे यहाँ पे ये थीम्स आ गई हैं. ठीक है, ये थीम्स इसकी मल्टीपल थीम्स है. पर क्या ये सारी मल्टीपल थीम्स इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये ओवरलैपिंग है. ठीक है, आपको सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर जाना है. ठीक है, अगर आपको मेंस लेवल का आंसर लिखना है जो टॉपर्स लिखते हैं, उसके लिए आप बस इतना मतलब सिंपल व्हाट इज PRI व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे काम नहीं चलेगा. आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या पूछ रहे हैं. तो अब एग्जैक्ट डायमेंशंस यहाँ पे आ रही है. ठीक है, रोल, चैलेंजेस, प्रोज एंड कॉन्स, रोल ऑफ फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, PRIs एंड ULBs का रोल क्या होता है, क्योंकि इंटरकनेक्शन तो यहीं पे आ रहा है, यहीं से डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं. सो यू हैव टू डू दिस. Once you've got this, can you not make like अच्छा 1-pager 2-pager notes on this? You can, absolutely. This is what you need. This is what we call dimension के through पढ़ना. Let's say another thing, kingdoms and highlights मैंने अभी आपको दिखाया था. अभी I showed you in the heat map कि ये बहुत important है. ठीक है, these are the questions that they have been asked. 2025 में भी in fact question आया था. चंदेला, पल्लवा, चोला. ठीक है, सल्तनत पीरियड का आया है, फिर से चोला क्वेश्चन है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज द डायमेंशंस. ठीक है, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको पता करना पड़ेगा, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को पता करना पड़ेगा, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, रिलीजन एंड कल्चर, सिग्निफिकेंस एंड लेगेसी, डिमांड, नोट मेकिंग मेथड. दिस इज ऑल यू हैव टू डू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डायमेंशंस ऑफ अ मेंस टॉपिक. अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये डायमेंशंस आपको क्लियर हो गई है माइक्रो थीम्स के थ्रू, ठीक है, इफ यू हैव डन दिस, इफ यू प्रोवाइडेड यू दैट, तो अब उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? विल यू बी एबल टू मेक गुड नोट्स? यस, yes, you'll pick up the important kingdoms. चोलास से क्वेश्चन आया, पल्लवास, एटलीस्ट इनके तो होने चाहिए ना. सल्तनत पीरियड है उसका तो होना चाहिए ना आपके पास. मुगल्स का है, लाइक one पेज. यू डोंट हैव टू क्रिएट लाइक अ ह्यूज कंटेंट, क्योंकि एक्स फैक्टर में ऑलरेडी वो बहुत क्यूरेटेड मिलता है आपको. आई विल शो यू व्हाट दैट इज. बट you don't need to write a book on particular thing. You just need to prepare on these dimensions to write a good value rich answer. All right, so this is the kingdoms and highlights. अब GS2 का एक बार देखते हैं. तो GS2 की एक माइक्रो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फेडरलिज्म, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, उसके अंदर आता है. दिस इज द फेडरलिज्म. इतने क्वेश्चंस आए हैं. अब इससे इन क्वेश्चन से मुझे डायमेंशन बनाना है, तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन क्या है? सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया. व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन? बहुत इंटरकनेक्टेड. हाउ फार डू यू थिंक कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन? ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस उन्हें पूछे. दीज आर द डायमेंशंस दैट यू विल कम अप विद. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है फेडरलिज्म की? प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, क्वाजी फेडरल नेचर. अब ये कहां से डायमेंशन बन रही है? बिकॉज क्वेश्चन से बन रही है. ये क्वेश्चन से, यहाँ PYQ से आप अपने डायमेंशन, थीम से डायमेंशन बनाते हो, राइट? फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज क्या है? मॉडल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल कॉपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, कन्फ्रंटेशनल, ड्रॉबैक्स क्या है कॉपरेटिव फेडरलिज्म के? दीज आर द क्वेश्चन. अब उससे एक लेवल आगे वो जाके पूछ सकते हो सकता है कंपेयर करने के लिए पूछ सकते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू बिल्ड ऑन योर डायमेंशंस, व्हाट यू रियली गेट इज दैट ओके,
I have these dimensions, I have clarity in this, what next? Because if you don't have the dimension, all you do that, ठीक है ये पुराने वाला पूछा है फिर से cooperative federalism, maybe they might repeat that question, but the chances that will actually pick that topic, put on some complicated concept या किसी और इस तरीके की कॉन्सेप्ट से या फिलोसफी से उसको वो कंपेयर करेंगे, एंड देन यू विल बी लाइक ओके, यू विल जस्ट स्कोर लाइक व्हाट 3 or 2 marks, मतलब बहुत कम मार्क्स आएंगे, which will definitely not get you even till the interview when if you're writing मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव structured notes. If you do not have structured notes, you do not have clear dimension, then the syllabus is horizontal, it's always moving. There is no way that you can complete the syllabus completely until unless you do not prioritize it under themes. There is no way that you can do it. Nobody can. We have like toppers who've cleared the exam just based on the fact that they had that system, they had that micro theme. अब X factor notes क्या होती हैं? These are the X factor notes. I've been saying that कि you have X factor notes जहाँ से आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो. These are the X factor notes. तो फिजिकल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया, किस तरीके की नोट्स में दिखनी चाहिए? इस तरीके की. This is what you need. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ है? क्या कीवर्ड्स होने चाहिए? अब अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये चीजें आपको थोड़ा स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ने के बाद, अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ लिए तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा. अगर आप पढ़ रहे हो तो ओके फाइन, बट यू कैन गो फॉर एक्स फैक्टर नोट्स ऑल्सो. दीज आर द पार्ट ऑफ स्मैश मेंस जो आपको मिलता है. ये मैकेनिज्म है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्वेश्चन आया, दिस इज द मैकेनिज्म, दीज आर द केस स्टडीज टू राइट अ वैल्यू रिच आंसर. दिस इज व्हाट यू need, this is the content you need. अब this content से भी आपको 1-pager note बनाना है. X factor और flash notes को मिला के you have to create 1-pager notes. Again, I will also take another theme here. जैसे अब हम e-governance की बात करते हैं. e-governance की dimensions क्या होती है? e-governance projects are built in bias towards technology and back-end integration, पर user centric नहीं है. E-governance is not about routine application of digital technology. ठीक है, सर्विस डिलीवरी में से रूटीन आप उसको अप्लाई कर रहे हो, that is not the purpose. E-governance as a critical tool of governance, it has ushered in effectiveness, transparency and accountability. Keywords दिख रहे हैं ना यहाँ पे? ये transparency, accountability, okay, built-in bias. Now this is a 2025 question. इससे पहले तो फिर भी सिंपल क्वेश्चंस आ रहे थे, बिकॉज ई गवर्नेंस हैज बीन इन द न्यूज फॉर द पास्ट 4-5 years, और लगातार क्वेश्चन आए. 2025 में आया, 24, 23, 21, 2020, 2019. सो यू कैन सी दैट इट्स क्वाइट लाइक वोग व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक. डिजिटल लिटरेसी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है यहाँ पे? चैलेंज है ना ये. तो इस तरीके की उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, बट इसमें बहुत सारी डायमेंशंस बनेंगी. अगर आप बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग या आपने बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, सो यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसमें 15 डायमेंशंस बन जाएंगे. क्या आपको 15 डायमेंशंस प्रिपेयर करनी है? ऑब्वियसली नॉट. बहुत ज्यादा क्लियरली एनालाइज करना है, तब जाके आप समझोगे कि किस तरीके से इसमें डायमेंशन बनेगी. ई गवर्नेंस की डायमेंशंस देख लेते हैं. What and why, ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है? इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. मैंने पीछे दिखाया था अकाउंटेबिलिटी, वही क्वेश्चन था. अगेन यू हैव टू गो एंड डू दैट. एवोल्यूशन एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या एवोल्यूशन था? मॉडल्स क्या है गवर्नेंस के? क्या चल रहा है? मॉडल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे उसने मेंशन किया था इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल. PYQ से आपको पता चल रहा है, 2024 का क्वेश्चन है. क्या बायस है, क्या नहीं है, दैट कम्स अंडर द चैलेंज. सो योर नोट शुड हैव दैट. चैलेंजेस और क्या है? डिजिटल इलिटरेसी है, रूरल ICT एक्सेस है, डिजिटल डिवाइड है. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद दिस. अब व्हाट डू यू डू? दीज आर द नोट्स, दीज आर एक्स फैक्टर नोट्स. इसने यहाँ पे गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं? दिस आई हैव जस्ट टेकन अ स्क्रीनशॉट बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम टू लाइक बहुत ज्यादा आप उसमें लाइक यू कैन नॉट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशंस आल्सो, वी हैव लिमिटेड टाइम. तो पर मैंने फिर भी ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया आपको कि की माइलस्टोन्स क्या है यहाँ पे, डेटा क्या है, how many people are using, क्या उन्होंने अचीव किया है. this helps in understanding. अब फूड प्रोसेसिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज फूड प्रोसेसिंग को इंडिया में काफी प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फूड वेस्टेज. इससे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं. 2022 में भी आया था, 29 और 2020 में आया था. दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर. अगर ये सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट, इम्पेडिमेंट्स इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कीवर्ड्स है. यहीं से आपका थीम बनेगा. तो यहाँ पे 2 टाइप का जा रहा है, ठीक है. ये फार्मर प्रोड्यूसर्स, FPI और ई-कॉमर्स, और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फार्मर्स, क्या इनका रिलेशन है. एंड देन दीज आर द थीम्स: सिग्निफिकेंस, स्कोप, लिमिटेशन, पॉलिसी, चैलेंज.
यहाँ पे भी चैलेंज फिर से आ रहा है, मार्केटिंग सप्लाई फिर से, so जो रिपीट हो रहा है वो ओवरलैप हो जाएगा, देन यू क्रिएट अ डायमेंशन एंड देन यू क्रिएट नोट्स ऑन दैट. These are the X Factor मेंस नोट, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का सारा डिटेल्स दिया हुआ है. इसको बहुत अच्छे से करो, उसके बाद अगेन बिफोर गोइंग टू द एग्जाम यू शुड हैव लाइक अ 1-pager नोट. दिस इज द 1-pager नोट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज आवर टॉपर्स. उन्होंने देखो ये जैसे पॉवर्टी का है, ठीक है, दिस इज पॉवर्टी 1-pager नोट्स. कमिटीज, गवर्नमेंट मेजर्स, ये देखो दिस. ऑलराइट, लुक एट दिस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इस तरीके से 1-pager. लीगल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर सके फैसेट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है. दिस इज हाउ दे हैव क्रिएटेड. नेशन बिल्डिंग कंसोलिडेशन क्या है, इमीडिएट, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एवरीथिंग. दिस इज अ टॉपर नोट. ये GS2 का है. GS2 में लोकल बॉडीज, अभी मैंने आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दिखाया था. दिस इज हाउ योर नोट शुड लुक लाइक. I mean, look at this. This is how a topper is preparing. If you do not have the system dimensions, how would you write this? How would you make a 1-pager note? मतलब how do you consolidate that? I don't even imagine having a preparation जहाँ पे आपके पास ये dimensions, micro themes की understanding नहीं है, जहाँ पे आप आगे के questions नहीं सोच सकते कि क्या आ सकता है. Especially in mains, because in mains बहुत ज़्यादा variation नहीं होता. There'd always be couple of questions जो कि आपको नहीं पता चलेंगे, ठीक है, वो आपको like, and that is a bouncer question, but that is bouncer question for everybody, right? So that is a level playing field. But जो questions repeatedly आ रहे हैं उसमें अगर आप problem कर रहे हो, create कर रहे हो, तो क्या होगा? देखो, this is like ethics के keywords, ethical dilemma, conclusions, prelims की micro themes. I will show you X factors कि हमारे X factor notes कैसी होती है. This is the X factor notes. Okay. So basically let's say 183 micro themes है, 17 years of PYQ का analysis है, और सिर्फ 146 pages में. So what I'm trying to say is that 10% is the part कि I'm 100% sure आपके पास micro themes होंगे या आप download करोगे. But that is not the end of it, right? That is just 10% of the problem solved. You have the document, you have maybe hundreds of documents like that, but it's not going to solve the problem. Clarity will come from actions. When you actually sit with these micro themes, create the dimension, right? Make those notes from flash notes, read those flash notes, okay? Then you give the mocks, you attempt the PYQs again. This is the system, okay? If you reach whatever the level of accuracy you're reaching, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना content, या तो आपने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, या तो आपका content में कमी है, आप PYQs दोगे, या तो फिर आपको conceptual clarity नहीं है, whatever be the reason, वो तो action लेके ही आएगा ना. Until unless you don't do that, there is no point. You will be just sitting there. Okay, action is progress. Without that, like, there is no point. तो जब वो आप साइकिल करते जाओगे, then you will be able to close this 90% का loop. And if you not close the 90% का loop, there's no chance. 0.1% is the success rate in the UPSC examination. This is the micro theme. आपका एक ही बेस होना चाहिए, और PYQs के ही through, that is the base, that is the seed from where your preparation should originate. And whenever anything goes back, this is where you have to go back as well. I have to say that again and again. Daily targets लो, ठीक है, आपके PYQs को accuracy से करो, weekly plan करो, monthly progress होनी चाहिए, ठीक है. किस तरीके का प्लान लिखना चाहिए? I will just take like a second to show you कि this is the timetable. अब मैंने आपको डायमेंशंस और सब कुछ माइक्रो थीम्स वगैरह बता दी, पर पढ़ना कैसा है? एंड लेट्स से रिवर सिस्टम पढ़ना है, ज्योग्राफी रिवर सिस्टम, ठीक है. पहले आपने PYQ से एक्यूरेसी चेक किया, आपको पता चल गया कि वेयर डू यू स्टैंड, कहाँ पे आप हो. सेकेंड डे रिवर सिस्टम की डायमेंशंस की एनालिसिस करो. थर्ड डे रिवर सिस्टम के फ्लैश नोट्स को पढ़ो. फोर्थ डे फ्लैश नोट से एडिशनल डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि एडिशनल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि डायमेंशन से बाहर जा रहे हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्या उसमें कुछ आ सकता है. एंड थिंक ऑफ द नेक्स्ट डायमेंशंस ऑल्सो. थिंक. देन अगेन मॉक टेस्ट, डोमिनेट प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दो, PYQ की एक्यूरेसी फिर से चेक करो. अंटिल अनलेस 80% एक्यूरेसी में नहीं पहुंच जाते हो, you can't move, you're not prepared, you'll again keep doing the same mistake. And that should happen with all the topics. Accuracy 80% होनी चाहिए. डिफिकल्टी लेवल जो होगा ऑब्वियसली डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट होगा, बट स्टिल सबकी डायमेंशंस, थीम्स और माइक्रो थीम्स अवेलेबल हैं. कौन कितने इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए रेडिली अवेलेबल है, आप देख के उसको कर सकते हो. लेवल्स क्या है, आपको फिर से बार बार फ्लैश नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और आपको अपने खुद के 1-pager नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है. इफ यू समबडी हु कैन नॉट मेक 1-pager नोट्स, देन ऑल्सो एटलीस्ट फ्लैश नोट्स को अच्छे से प्रॉपरली रीड करके अंडरलाइन करके आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, या आपकी स्टैंडर्ड सोर्सेज से, ठीक है.
सो दिस इज इट अक्रॉस GS 1 2 3 4 15 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. मेंस की अगर बात करें देयर आर 15 सब्जेक्ट्स, 288 माइक्रो थीम्स हैं. यूपीएससी ने अगर 2 क्वेश्चन से ज्यादा पूछा है तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ओवर द लास्ट 10 ईयर्स 2 क्वेश्चन से ज्यादा तो वो एक थीम बन जाएगी. मेंस के लूप क्लोज करने के लिए व्हाट डू यू हैव टू डू? मेंस का लूप क्लोज करने के लिए सबसे पहले बात तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मेंस का सिलेबस भी बहुत बहुत वेग है, बट इट्स स्टिल मोर प्रेडिक्टेबल व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स. वहां से ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आता, फिर भी आप उसको एक कैच कर सकते हो. आपके पास वो हीट मैप है, हीट मैप पे जाओ, वहां से देखो कि कौन से टॉपिक्स और माइक्रो थीम्स को पहले करना है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है. PYQs को एनालाइज करो. डायमेंशन एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है. वंस यू डन द डायमेंशन एनालिसिस, देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम द X Factor notes. Once you've made that, start giving mocks, start writing answers, and also supplement whatever you're making in the through X Factor notes. Also add burning issues. ठीक है, burning issues आपको is like a current affair theme जो हम देते हैं, उससे ऐड करो, या वट एवर करंट अफेयर यू रीडिंग, न्यूज़पेपर और समथिंग, प्लीज ऐड फ्रॉम दैट. उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द पेपर्स दैट आर वेरी रेलिवेंट. Last, basically, we're actually, if you have any kind of question, this is my number. Please, you can call on this. If you have any kind of question, I will be there to help you out. और आप मुझे reach out कर सकते हो. And scan this right now. This is actually, अभी करो इसको. Avail the scholarship. If you need any kind of help, we will help you out. Scan this, find out more about this, how mentorship works. If you have any kind of question for, that you want be sorted, आपको कोई भी problem है preparation में, आप हमें reach out कर सकते हो. इस number पे call करो, ठीक है? Or go to our website or anything. You have you all are like very intelligent people. सब internet का use करते हैं, they know how to reach out. But still, like अगर आपको personally मुझसे बात करनी है तो I have given out the number. So that is the end of the session. And lastly, मैं एक बार बस इस document को फिर से लेके जाऊंगी और then we're done. This is something that we're launching. Okay, this is going to be there. आपके fingertips पे ये होगा बहुत जल्द. आपको बस ये promise करना है कि you will use this every time, every single day, because it is actually give you आज से ज्यादा कल clarity मिलेगी, कल से ज्यादा परसों, and clarity is very important. You have to take that action. Syllabus is extremely vague. I do not disagree with you, but still इतना vague होता तो लोगों का selection नहीं होता, ठीक है? 17 years के PYQs मैंने आपको दिखाए, ये हैं 17 years के PYQ. अगर इसको आप देख रहे हो और हमने ये system बना दिया है तो how is it vague? We're telling you, it's telling you, the questions are telling you, the patterns are telling you, the micro themes are telling you which direction to go. See, there are a lot of knowledgeable people, lot of aspirants with a lot of knowledge. They're not clearing the exam because they do not have the direction, and probably if they do not reorient their preparation, they will again not succeed. If you're starting somewhere, like you're a beginner, this is the only system that will work. That is the guarantee. This is the only system that will work. Thank you so much for joining me today. If you have any questions, we have already given the number. I will show you that again. Just reach out to us and scan this, guys. इसको scan करो और हमसे बात करो, और कोई भी questions हो, कोई भी doubt हो, let us know. And thank you so much for watching, and I'll come back again with something more interesting. Thank you and have a good evening.